आदाब नाज़रीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने दावा किया कि रियासती हुकूमत ने क़याम तेलंगाना के बाद से अब तक हुसूल तालीम के लिए तलबा को 12,800 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप्स जारी करते हुए नौनिहालान कौम के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाया है। इस वक्त हुकूमत के क़ायम करदा अक़ामती स्कूलों में 4,32,000 से ज़ायद तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं। हर एक तालिब इल्म पर 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करते हुए TRS हुकूमत ने मुल्क भर में मुनफर्द हैसियत हासिल कर ली है। KT रामाराव, जो बरसर इख्तिदार पार्टी के कारगुजार सदर भी हैं, ने आज तेलंगाना स्टेट के खानगी कॉलेजेस के मैनेजिंग कमेटी के प्रिंसिपल्स और असातिज़ा के इजलास से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त सिर्फ 248 अक़ामती स्कूल थे। TRS हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के विजन को फ़रोग़ देते हुए 6,000 से ज़ायद तालीमी इदारों का जाल बिछाया ताकि रियासत का हर बच्चा आला तालीम याफ्ता बनकर अपने घर का सहारा बने और मुल्क के दरख्शां मुस्तक़बिल को ताबनाक बना सके। इस इजलास से सेक्रेटरी जनरल TRS पार्टी और रुकन राज्यसभा डॉक्टर K केशवराव, वजीर इंफार अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव और दीगर ने भी खिताब किया। 12,800 కోట్ల రూపాయలు 12,800 crores of money has been disbursed to millions of children, to lakhs of children as fees reimbursement. పిల్లల కోసం వారి చదువు ఆగకూడదనే ఉద్దేశంతో వారు ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో చదువుకున్న వారికి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ని కూడా ప్రభుత్వం అందించి పోయిన 6 సంవత్సరాలుగా 12,800 కోట్ల రూపాయలు మరి వారి కోసం ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ రూపంలో అందించింది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం. అది మాత్రమే కాదు, భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఎవరైనా అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ బాగా చదువుకొని నేను మరింత మెరుగ్గా చదువుకుంటాను, విదేశాలకు పోతాను, అక్కడ కూడా చదువుకుంటాను అంటే దేశంలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇవ్వడం లేదు. కేవలం ఒక కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం మాత్రమే డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ పేరిట, మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే స్కాలర్షిప్ పేరిట, వివేకానంద స్కాలర్షిప్ పేరిట ఈరోజు వేలాది మంది విద్యార్థులకి 20 లక్షల రూపాయలు, ఒక్కొక్కరికి 20 లక్షల రూపాయలు చొప్పున ఇచ్చి విదేశాల్లో కూడా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లు PhDలు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఇంకా చెప్పాలి అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొత్తగా 53 డిగ్రీ కాలేజీలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొత్తగా 11 పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. I'll give you one statistic which will make you understand the kind of importance Telangana government has given to teaching and students, educational institutions. Telangana రాకముందు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट D अरविंद को पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया। उन्होंने आज भैंसा में तशद्दुद से मुतासिरा इलाकों का दौरा करने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने पीर की रात में ही रुकने पार्लियामेंट को भैंसा का सफर करने से रोक दिया और बंजारा हिल्स पुलिस में वाक़ उनकी क़यामगाह के बाहर पुलिस पिकेट्स लगा दिए। बाद अज़ां BJP रुकने पार्लियामेंट निज़ामाबाद D अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भैंसा का वाक़या मुकामी मुसलमानों की वजह से रूनुमा नहीं हुआ, बल्कि गैर मुल्की मुसलमानों की वजह से पेश आया। उन्होंने KT रामाराव के ट्वीट पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि KT रामाराव सिर्फ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, जो अफसोसनाक है, और ये वोट बैंक की सियासत है। जबकि भैंसा वाक़े में बड़े पैमाने पर हिंदुओं को मारा गया और उनकी दुकानों लूट ली गई और जलाई गई। उन्होंने बताया कि रियासत में सुनहरा तेलंगाना को नहीं आया, लेकिन MIM का राज जारी हो गया है। ఎక్కడుంది ఆడలేదు ఈవెంట్ వాళ్ళకి చేసే హక్కు మాకుంది. ఏం చూపెట్టాలి మరి ఆ గొడవనికి ఉందా వాళ్ళని హిందువుల్ని ఇష్టమున్నట్టు గొడవనికి ఇష్టమున్నట్టు గొడవనికి హిందువు కాదా, హిందువు కాదా, నాయనాడ బ్యాంకాల లేదా రౌడీ గాని బయట పెట్టుకున్నారు కదా, రౌడీ గాని వాడు పేరే సుబేరేమతిని వాడిని వదిలేసింది కదా, సంపమని హిందువుని సంపమని వదిలేసింది కదా, హిందువుని సంపమని వదిలేసింది కదా. ఇది సమాజ్ అయిపోయింది. ఆడేమో ఎవరి
ఎవరైతే పొడుస్తున్నాడో వాడిని అరెస్ట్ చేసి ప్రతి సంవత్సరం పొడుస్తూ ఉంటాడు హిందువుల్ని, వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసేది నేను నా కాన్స్టిట్యూన్సీ పోతాను. తమాషా తమాషానే ఇది, పైసల తమాషా ఇది, తమాషా అవుతున్నారు పైసల. ప్రతి సంవత్సరం పైసల తమాషా, ప్రతి సంవత్సరం తమాషా చేస్తున్నారు పోలీసులు. నేను కాకి యూనిఫామ్ అని హిందువులు పట్టుకుంటూ పోతారా? అరే నా కాన్స్టిట్యూన్సీ కూడా పోయి నేను తమాషా చేస్తున్నాను. వారెంట్ లేదు, తొక్క లేదు, తోలు లేదు. तेलंगाना के हिस्सा सरीन भैंसा टाउन में हुए तशद्दुद के वाक़े की आला सतही जांच करवाने की रियासत के डीजीपी को मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने हिदायत दी है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि लॉ एंड आर्डर रियासती हुकूमत का मसला है। उन्होंने कहा कि भैंसा वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। किशन रेड्डी जिन्होंने इस वाक़े के सिलसिले में आज अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक मुख्तसर वीडियो जारी की, कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को इस मामले की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया गया है। किशन रेड्डी ने इन वाक़यात की मजम्मत की और कहा कि उन्होंने इस मसले पर डीजीपी से 2 मरतबे बात की और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात का इआदा न होने देने के लिए माक़ूल पुलिस बंदोबस्त करने की भी हिदायत दी। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार 2 अफराद के दरमियान बहस के बाद जमा होने वाले 2 फ़िरक़ों के लोगों में पथराव होने लगा। झड़प के दौरान 2 घरों और सब्जी की 2 दुकानों को नुकसान पहुंचा और एक कार, 4 2 पहियों की गाड़ियां और कुछ ऑटो रिक्शा को नज़रअंदाज कर दिया गया। पुलिस ने इंतबाह दिया कि अफवाह फैलाने वाले और फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने व्हाट्सएप एडमिन से कहा है वो पोस्टों पर नज़र रखें और मुतनाज़ा मवाद को फैलने से रोकें। రోజుల క్రితము తెలంగాణ బైన్సాలో జరిగినటువంటి మతపరమైనటువంటి ఘర్షణలు తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాను. గత అనేక రోజులుగా మరి 30-40 సంవత్సరాలుగా వరుసగా బైన్సాలో ఘర్షణ జరగడము, ఒక వర్గం వారిపైన మరొకరు దాడి చేయడము, ఇది ఏమాత్రం మంచిది కాదు. ఇటీవలనే దాడులు జరగడము, మళ్ళీ 3 రోజుల క్రితం జరగడము, వరుసగా దీని వెనుక మరి కొన్ని విద్రోహ శక్తులు స్పష్టంగా మత సామరస్యాన్ని దెబ్బతీయడం కోసం, అక్కడ ఉండేటువంటి సామాన్య ప్రజలను హింసించడం కోసం చేస్తున్నటువంటి కుట్రగా కనిపిస్తా ఉంది. ఇప్పటికే ఈ విషయం పైన నేను డీజీపీ గారితో 2 సార్లు మాట్లాడాను. దీనిపైన ఉన్నత స్థాయి దర్యాప్తు జరపాలని, భవిష్యత్తులో ఈ రకమైనటువంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా పోలీసు వ్యవస్థను పటిష్టం చేయాలని, శాశ్వత ప్రాతిపదికన మరి మత కలహాలు జరగకుండా, దాడులు జరగకుండా, ఘర్షణ. सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वाज़ेह किया है कि मजलिस पार्टी तमिलनाडु में 3 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि 12 तारीख को चेन्नई के वीएमसी में एक मीटिंग का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के अवाम दिनाकरन पार्टी पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो माजी में 4 से 5 नशिस्तों पर मुकाबला करने का इरादा रखते थे, अब हमने 3 नशिस्तों पर मुकाबला करने का फैसला किया है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि उन्होंने दिनाकरन के साथ बातचीत के बाद 3 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ने का फैसला किया है, जिनमें वानम्बाड़ी, कृष्णागिरी और शंकरापुरम में मजलिस मुकाबला करेगी। नहीं, दिनाकरन साहब, मेरा मानना यह है कि तमिलनाडु में उनका बाई इलेक्शन की जो विक्ट्री थी आरके पुरम से, और तमिलनाडु में आरके पुरम में एक बहुत ही पॉलिटिकली प्रेस्टिजियस सीट मानी जाती, और जिसमें उन्होंने डीएमके को भी हराया, एडीएमके रूलिंग पार्टी थी उसको भी उन्होंने शिकस्त दी और खुद कामयाब हुए। और अच्छी मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना कहूँ तो 10,000 वोट से ज्यादा उनको एक बाई इलेक्शन में बहुत बड़ी कामयाबी हुई। और मुझे यकीन है कि दिनाकरन साहब एक पॉलिटिकली श्रूड और एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, और उनके साथ हमको जाने से यकीनन एमआईएम पार्टी को भी, उनको भी, और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा फायदा तमिलनाडु के वोटर्स को होगा, क्योंकि वो लोग अभी ये 2
अलायंसेस जो है ट्रेडिशनली पीएमके डीएमके की, उससे वो तंग आ रहे थे कि उनको एक ऑल्टरनेटिव की जरूरत है और वो बहुत बड़ा उस वहां पर एक वैक्यूम है और हम कोशिश करेंगे उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने की। और हाँ, सवाल आपका डीएमके का, तो इस बारे में मैं तफसील से बताऊंगा जब 12 तारीख को हमारी तमिलनाडु की जनता को कि डीएमके ने किस तरह से हमसे पेश आया, किस तरह से हमसे बर्ताव किया, इस पर मैं तफसील से बताऊंगा 12 तारीख के दिन पब्लिक मीटिंग में। सर 3 सीट आप लड़ रहे हैं, क्या आप इस चीज से सेटिस्फाइड है? और साथ ही साथ क्या आप तमिलनाडु के लोगों में ये एमआईएम लोगों के लिए काम करेगी, ये मैसेज आप कैसे देंगे और आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए, 5 साल पहले भी हम लोग मेरे ख्याल से 3 या 4 सीट पर ही लड़े थे, तो इस बार भी हम हमारी पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं और एआईएमआईएम पार्टी के जो यहाँ से ऑब्जर्वर है जनाब तैयब साहब और हमारे तमिलनाडु बैंकों को खानगियाने के फैसले के खिलाफ बैंक यूनियनों ने 15 मार्च से 2 रोज़ा हड़ताल करने का ऐलान किया है। बैंक मुलाजमीन की हड़ताल के पेश नज़र मार्च 13 से 16 मार्च तक बैंक मुसलसिल 4 दिन बंद रहेंगे। 13 मार्च को दूसरे हफ्ते की तातील और 14 को इतवार की तातील है, जिसे बैंक बंद रहेंगे। बैंक मुलाजमीन की हड़ताल के सबब 15 और 16 मार्च को बैंक बंद रहेंगे। बैंक ओहदेदारों ने बताया कि मार्च के महीने में इतवार और दीगर त्यौहार हड़ताल की वजह से बैंकों को 11 दिन की छुट्टियां हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर मरकजी रेलवे ने हमला करते हुए 10 रुपये प्लेटफार्म टिकट को 30 रुपये कर दिया। नामपल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म के टिकट की कीमत 20 रुपये कर दी गई। दीगर छोटे रेलवे स्टेशन काचीगुड़ा, मौलाली, मलकाजगिरी, लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म टिकट की कीमत 10 रुपये कर दी गई है। बहुत दिनों से सर्दी को झेल रहे तेलंगाना के अफराद को अब गर्मी की लहर का मुकाबला करना है, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते से दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है और सुबह 7 बजे से गर्मी में इजाफा हो रहा है और हवाओं की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। अगर गर्मियों के आगाज़ पर यह हाल है तो अप्रैल और मई में क्या हाल होगा, अवाम इससे परेशान हैं। उमूमन गर्म लहरें शिवरात्रि के मौके पर रियासत में दाखिल होती हैं, लेकिन पिछले बरस के मुकाबले में इस बार मार्च में ही गर्मी की लहर शुरू हो गई है। अभी दर्जे हरारत 36.6 डिग्री सेल्सियस है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों के बमुजिब इस साल दर्जे हरारत 42 से 45 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है और ये शिद्दत अप्रैल और मई में रहेगी। आज भद्रादरी में दर्जे हरारत 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सीनियर कांग्रेस कायद और साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव ने मरकजी हुकूमत पर विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को खानगी अफराद के हाथों फरोख्त करते हुए हज़ारों मुलाजमीन को बेरोजगार कर देने का इल्ज़ाम आयद किया है। आज मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू हुकूमत के ज़ेर एहतमाम कंपनियों का क़याम अमल में लाते हुए लाखों अफराद को रोज़गार फराहम किया गया था और उनकी कंपनियों के इस्तेहकाम के लिए लाखों एकड़ अराजी मुख्तस की गई थी। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम कंपनियों को अपने शागिर्दों को कौड़ियों के दामों फरोख्त करते हुए लाखों अफराद को बेरोज़गार करने और चंद मुट्ठी भर अफराद को माशी तौर पर मुस्तहकम करने का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। फैक्ट्री है, बाकी का 10,000 एकड़ प्राइवेट वालों को बेच दे रहे, तो अब हमारा नौकरी कहां जाती भैया? कितने लोगों को भर्ती करते वो नहीं बोल रहे, कितनों लोगों को निकालते वो नहीं बोल रहे, और रिजर्वेशन अमल नहीं होता। तो इससे पता लग रहा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले कॉर्पोरेट सेक्टर से बातचीत करा, देखो भाई मेरे प्रधानमंत्री बनाओ, उसके बाद आप जैसा बोले वहां साइन करो, बोले तो कर तुम बोला। उसका नतीजा डिमोनेटाइजेशन करा, लोगों को परेशान करा उनके बोलने से, उसके बाद जीएसटी करा, अब जमीना बेच रहा। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू पब्लिक सेक्टर को रख के कितने लोगों को नौकरियां मिले, आज प्राइवेट वालों के पास गए तो नौकरी का कोई गारंटी नहीं है, प्रमोशन का कोई गारंटी नहीं है और रिजर्वेशन भी अमल नहीं होता। तो इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। ऐसा दिख रहा, पहले बोले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह रिमोट कंट्रोल
सोनिया गांधी बोले अब तो तुम्हारा रिमोट कंट्रोल अदानी अंबानी के हाथ में है, आप बड़े बड़े कारपोरेट के फंस गए, तुम उनके क्लचेस में आ गया। तो इस वजह से सबका जिम्मेदारी बनता हर पॉलिटिकल पार्टी का है, ओबीसी एमपी के कन्वीनर के नाते हमारा गरीबों का रिजर्वेशन क्या होना, और सभी लोग मिलके विशाखा इंडस्ट्री को प्राइवेट से रोकना चाहिए, नहीं तो कल बीएचईएल बेच देंगे, नहीं तो ईसीएल भी बेच देंगे। इसके ऊपर लड़ना चाहिए, नहीं लड़ेंगे तो आने वाले नस्ल को कुछ नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा, आखिरी में अनार्की बनेगा, लोग खुदकुशियां कर लेंगे। इसके जिम्मेदार हर एक पॉलिटिकल पार्टी सामने आना। कांग्रेस कमेटी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सिद्दीपेट जिले के कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर और दीगर अहदेदारों का फिलफूर तबादला करते हुए उनकी जगह पर नए और गैर जानिबदाराना अहदेदारों को मुतय्यन करें, ताकि जिला इंतजामिया पर अवाम का इत्मीनान बरकरार रह सके। अदालत ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत का फैसला देते हुए हुकूमत की सख्त तंबीह की है। चिरुक्कू श्रीनिवास रेड्डी, इंचार्ज दुबाक असम्बली इलाका कांग्रेस पार्टी ने आज मीडिया से बात करते हुए हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो काश्तकारों को हिरासा करते हुए गैर कानूनी तरीके से उनकी ज़मीनात को हासिल कर रही है। आज के दिन गांडला तिरुपति किसान वेमलागट का एक गवर्नमेंट के ऊपर कंटेम्प्ट केस, किसान का जो जगह है उसको बिना नोटिफिकेशन, बिना लीगल प्रोसेस फॉलो करके 3 महीने का सजा दिया है। जो सजा दिया है, आज किसान हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा है, बोले तो लड़ सक रहे, बोले तो भी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी 2013 एक्ट लाने की वजह से आज किसान ये हुकूमत से लड़ रहे हैं। तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी किसान जिसको अन्याय हो रहा है उन सबको न्याय होने तक लड़ेंगे, और हम एक गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं। कुकटपल्ली बार एसोसिएशन की जानिब से कुकटपल्ली कोर्ट के सामने वामन राव एडवोकेट कत्ल वाक़े के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए इंसाफ 2 के नारे लगाए। एडवोकेट्स ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो वामन राव कत्ल मामले की CBI तहकीक़ात करवाएं और आए दिन रियासत में कत्ल और के वाक़यात पर काबू पाने के इक़दाम करें। పిలుపు మేరకు మేము మా న్యాయవాదుల రక్షణకై పోరాడుతూ మేము ఈ రోజున కూకట్పల్లి బార్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ అందరూ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించుకొని మా యొక్క విధులు బహిష్కరిస్తున్నాము. ఎందుకంటే రోజు రోజుకు న్యాయానికి పోరాడే న్యాయవాదులకే రక్షణ లేకుండా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా మీ అందరికీ తెలుసు, రీసెంట్ గా వామన్ రావు దంపతుల బ్రూటల్ మర్డర్ కేసును మీ అందరూ నిరసిస్తున్నాము, ఏకగ్రీవంగా నిరసిస్తూ దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మాకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయడం ఏమనగా మాకు వీలైనంత తొందరగా ఒక ప్రత్యేక రక్షణ చట్టం కల్పించి అసెంబ్లీలో ఆమోదించి మా న్యాయవాదులందరికీ రక్షణ కల్పించాలని ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని విన్నవించుకుంటున్నాము మరియు డిమాండ్ చేస్తున్నాము. మీ అందరికీ తెలుసు, మేము తెలంగాణ రాష్ట్రానికై ముందుండి పోరాడి ఈ యొక్క తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాము. కానీ ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం आंध्र प्रदेश के जिले विशाखापट्टनम में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को खानगी आने के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। स्टील प्लांट को बतौर पब्लिक सेक्टर बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए
हजारों लोगों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी के अलामती पुतले को नजर आतिश करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। वाईएसआर हुकूमत ने मोदी को मकतूब तहरीर करते हुए मुलाकात का वक्त देने और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को खानगी आने के मंसूबों को मनसूख करने का मुतालबा किया। कल ही पार्लियामेंट में वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने कहा था कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को 100% मरकजी हुकूमत खानगी आने के लिए कोशां है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक अलमनाक वाक़े में एक ही खानदान के 3 अफराद ने खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक अनंतपुर जिले के कुरला दिने मंडल के एर्रागुंटला में इस इज्तिमाई खुदकशी का मामला पेश आया। मुतवफ़ियों की शनाख्त 43 साला रामकृष्णा, उसकी 38 साला बीवी राजेश्वरी और 12 साला बेटे योगेश्वर की हैसियत से हुई है। उन्होंने कल रात जहरीले छर्रे निगल कर खुदकशी कर ली। आज सुबह इत्तला मिलने पर पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर एक मुकदमा दर्ज किया और तहक़ीक़ात कर रही है। पुलिस इस मामले के शवाहिद इकट्ठे कर रही है और सिलसिले में गांव वालों से तफसीलात भी हासिल कर रही है। गांव में एक ही खानदान के 3 अफराद की खुदकशी ने माहौल को सोगवार बना दिया है। ताहम उनकी खुदकशी की वजूहात का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है और इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात अभी मालूम नहीं हो सकी हैं। मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में यौम ख़वातीन के मौके पर लक्ष्मी ने अपने ही घर पर सीलिंग से लटक कर खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक लक्ष्मी के अफराद ख़ानदान ने बताया कि अशरफ नामी एक शख्स ने कुछ दिन से उसे हिरासान करना शुरू किया था। कल उसने 35 मिस कॉल्स किए थे। पुलिस ने बताया खुदकशी वाक़े की हर जाविये से तहक़ीक़ात की जा रही हैं। మా చెల్లెలు సూసైడ్ చేసుకుంది. పేరు లీజా, 19 ఇయర్స్ ఉంటుంది. ఒక అబ్బాయి తనని నేర్పించిండు, అందువలన సూసైడ్ చేసుకుంది. కొన్ని రోజుల కింద ఫోన్ చేసినుండే. అయితే నాకు చెప్పినుండే మా చెల్లెలు, ఇట్లా నాకు ఫోన్ చేస్తున్నానా, ఇట్లా ఓకే ఎంబడి పడుతున్నా అంటే నేను ఒకసారి వాళ్ళ అన్నకు చెప్పిన, ఇట్లా మీ తమ్ముడు ఇట్లా మా చెల్లెల్ని ఏడిపిస్తుండు, ఇట్లా ఫోన్ చేస్తుండు అంటే వాళ్ళ అన్న అన్నాడు, సరే అన్న నేను చూస్తా, నేను ఇంకోసారి కాల్ చేయని అని చెప్పిండు. అయితే ఈరోజు ఏమైందంటే ఈరోజు మార్నింగ్ జాబ్కి వెళ్ళింది మా చెల్లెలు. తర్వాత ఆడు ఫోన్ చేసిండేమో. అయితే ఈరోజు మధ్యాహ్నం వచ్చేసింది ఇంటికి. మధ్యాహ్నం ఇంటికి వచ్చి ఊరేసుకుంది. అయితే మా చెల్లెల ఫోన్లో చూస్తే 123 మిస్ కాల్స్ ఉన్నాయి, 8 కాల్స్ ఉన్నాయి. అయితే నేను పిఎస్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చాను. అయితే బాడీకి అనేది పోస్ట్ మార్టం తీసుకెళ్ళారు. కానీ ఇప్పుడు ఇంత టైం అవుతుంది. నేను కంప్లైంట్ ఇస్తే ఇంకా పోలీసు వాళ్ళు ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటలేరు. అతను తీసుకొస్తా అని చెప్తారు కానీ ఇంతవరకు తేలేరు. ఏమంటున్నారు అంటే అతను లేడు అంటున్నారు. ఈ టైం వరకు మేము ఇక్కడనే, మా మమ్మీ నేను ఇక్కడనే ఉన్నాము. నాకు ఎవరు ఏం సాయం చేయలేదు. లక్ష్మగూడ విలేజ్లో ఒడిశాకు సంబంధించినటువంటి ఒక 19-20 సంవత్సరాల అమ్మాయి హ్యాంగింగ్ చేసుకొని సూసైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ పేరెంట్స్ నిన్న రాత్రి 10 గంటల ప్రాంతంలో మాకు ఫిర్యాదు చేస్తే కేసు రిజిస్టర్ చేసేసి కేసు దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ అమ్మాయి సూసైడ్కు చేసుకోవడానికి గల కారణాలు అనేటువంటివి దాంట్లోనే ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది. దర్యాప్తులో తేలినటువంటి విషయాలపైన ఖచ్చితంగా మేము చర్య తీసుకుంటాం. వాళ్ళ పేరెంట్స్ అలిగేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు. దాని మీదనే దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. దర్యాప్తులో వెళ్లి చూసిన విషయాలపైన ఖచ్చితంగా చర్య తీసుకుంటాం. అంటున్నారు గత కొంతకాలం నుంచి లవ్ అఫైర్ ఉంది అని చెప్పేసి. ఆ విషయాలు पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जियागुड़ा का रहने वाला आरिफ नामी शख्स ने शादी के दिन शादी खाने में आने से इनकार कर दिया।
तफसीलात के मुताबिक दूल्हे वालों ने मजीद जहेज की मांग की, जबकि दुल्हन के वालिद का कहना है कि दूल्हे वालों की जानिब से जो भी ख्वाहिश की गई उसे देने के लिए आमादा हो गए थे, फिर भी शादी के दिन शादी खाने को नहीं आना। बाद अज़ां दुल्हन के वालिद की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। पहाड़ी शरीफ पुलिस एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। नाजरीन, जहेज की लानत से माशरे को पाक करने के लिए अवाम को खुद आगे बढ़कर इस सिलसिले में इक़दाम करना चाहिए, जिससे माशरे में गैर शादीशुदा लड़कियों की शादियां आसानी से हो जाएं, जिससे उनके माँ बाप इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार सकें। भाई थे ना दिन के ठहरे हुए शिक्षा के बच्चे तो पहले मिले हैं, शिक्षा के बच्चे दोनों बोले भाई अजमत में आगे क्या करें, रिश्ते की बात करें हमारे घर पे आके, तो हम लोग बोले देखो भाई अभी ये करना नहीं है, हमको करना नहीं है बोले हम लोग। तो उन्होंने बोले कि नहीं भाई 5-6 साल से हम तुम्हारा देख रहे हैं, तुम हमको पहचानते, हम तुम्हारा पहचानते, हमको रिश्ता करना है तुम्हारे घर से बोल। तो हम लोग बोले देखो भाई सोच के बोलते उन्होंने क्या करें, हर 4 दिन में एक दफ़ा आ रहे थे। तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज़ तेज़ाब हमले में शदीद झुलस जाने वाली खातून की आज मौत हो गई। पीर के रोज़ मेदक ज़िले में साजिद नामी जानवरों की अफजाइश करने वाले शख्स ने रकमी लेन देन के मामले में खातून पर तेज़ाब फेंक दिया था। ये वाक़या इल्ला दुर्गम मंडल गड्डी पेदापुर में पेश आया था। खातून पर तेज़ाब फेंकने के बाद हमलावर फरार हो गया। तेज़ाब हमले में शदीद ज़ख्मी होने वाली मुतासरा खातून को हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ इलाज के दौरान मंगल की सुबह खातून की मौत हो गई। पुलिस ने मुतासरा की शनाख्त टेकमाल मंडल के अंतापल्ली तांडे के तौर पर की है। पुलिस ने साजिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और वाक़े की तहकीकात कर रही है। మగపేటకి చేరి ఒక 10 సంవత్సరాల క్రితంలో అక్కడ వాళ్ళ భర్తను అక్కడే హత్య చేసిన సమయంలో అక్కడ ఉన్న ఆస్తి అమ్మేసి ఇక్కడ వచ్చి మల్కాపూర్లో వాళ్ళ అన్నదమ్ముల దగ్గర తీసుకొని అక్కడ మామూలు రేకులు ఇల్లు కట్టుకొని జీవనం సాగిస్తుందండి. ఆమెకి 2 కూతురు, ఒక ఆమెను మ్యారేజ్ చేసింది, ఇంకో ఆమె 10 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. మామూలుగా ఆమె కూలి పని చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ కూలి పని చేస్తూ ఉంటుంది। तेलंगाना में कोविड-19 के 142 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,01,53 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,644 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 178 अफराद रोबा सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से सेहत याब होने वालों की तादाद बढ़कर 2,96,740 हो गई है। बदवी जिले के ओराई असम्बली हलके से बीजेपी रुकन असम्बली दीनानाथ भास्कर ने कहा है कि उन्हें अपनी ही पार्टी के ओहदेदार का फ़ोन आया, जिसने उन्हें गोली से मारने की धमकी दी है। इस कॉल की ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जबकि भास्कर ने पार्टी क़ियादत के साथ पुलिस को भी इस फ़ोन कॉल के बारे में मुत्तला किया। भदोही के सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस राम बदन सिंह ने कहा कि रुकन असम्बली ने अभी तक कोई तहरीरी शिकायत नहीं की है, लेकिन जैसा कि उन्हें धमकी दी गई है, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच की बुनियाद पर आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। राम बदन सिंह ने कहा कि इब्तिदाई जांच में पता चला है कि बीजेपी से जुड़े एक शख्स धीरेन्द्र दुबे अपने 14 साल बेटे को लेकर परेशान था, जो इतवार को दोपहर को घर से निकला था और पीर तक वापस नहीं आया। हालांकि लड़का पीर की देर शाम घर लौटा, लेकिन इससे पहले दुबे ने अंदेशा जाहिर किया कि लड़के का अगवा कर लिया गया है। उसने भास्कर से पूछताछ की और पूछा कि उन्होंने अवामी नुमाइंदा होने के बावजूद उनके बेटे की बाहिफाजत वापसी के लिए उन्होंने ऐसी एसपी और दीगर सीनियर पुलिस ओहदेदारों पर दबाव क्यों नहीं डाला।
दुबे ने यह भी धमकी दी कि अगर उनके बेटे के साथ कोई भी अफसोसनाक वाकया हुआ तो वो रुकने असेंबली को गोली मार देंगे। कोलकाता में आज आतिशज़दगी के दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। ये वो लोग थे जो आग पर काबू पाने और लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए दौड़े थे, लेकिन अपनी जिंदगी हार गए। शहर के स्ट्रैंड रोड में मशरकी रेलवे की इमारत की 13वीं मंजिल पर आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग अपनी और दूसरों की जानें बचाने के लिए दौड़ पड़े। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड और इमदादी टीम भी राहत के काम में जुट गई, लेकिन बचाव कार्य के काम में मसरूफ 7 एहलकार अपनी जिंदगी की जंग हार गए। आग इमारत की 12वीं और 13वीं मंजिल पर लगी थी, लेकिन लिफ्ट सिर्फ 6ठी मंजिल तक ही पहुंची। इमारत में धुआं फैल जाने की वजह से लिफ्ट ने भी काम करना बंद कर दिया और लिफ्ट के अंदर वो बाहर राहत के काम में मसरूफ 7 एहलकार अपनी जिंदगी बचाने में नाकाम हो गए। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज।